because of the rupture of a cerebral vein, or we can say bridging vein, cerebral vein or bridging vein, mainly present in which age group? Old age. और उसका रीजन भी हमने कल डिस्कस किया था. The next, the types of hematoma. So person will have a crescent shape hematoma, or we can say sickle shape or fork shape hematoma. Symptoms में ज्यादा कोई मेजर सिम्टम्स नहीं आते हैं. Fluctuation level of consciousness and onset is very slow. It appear after months, 1 month, 2 month, 5 month, 6 month, 1 year के बाद भी ये appears हो सकता है. Now आज जो हम डिस्कस करेंगे remaining two types of hematoma. The one is subarachnoid hemorrhage or hematoma, SAH, and one is ICH, intracranial hemorrhage or hematoma. So first start करते हैं. Very important, subarachnoid hemorrhage or hematoma. SAH, subarachnoid hemorrhage or hematoma. As the name is indicating, subarachnoid hemorrhage or hematoma. Subarachnoid is subarachnoid present in which space? Hematoma present in which space? Subarachnoid space. This type of bleeding or hematoma present in which area? Subarachnoid space. This subarachnoid space is formed by two vessels, that is pia mater and arachnoid mater. Space between pia mater and arachnoid mater is known as subarachnoid space, which contain CSF. Now this is the area where this hematoma present, जहां पे ये present रहेगा. जैसे हमने अलग अलग लोकेशंस डिस्कस किया था प्रीवियसली, सेम यहाँ पे इसका लोकेशन इसमें रहेगा. अगर हम बात करें, आप देखेंगे मैंने जब कल पढ़ाया था आपको, अगर हमने फर्स्ट हेमेटोमा की बात किया तो फर्स्ट हेमेटोमा बहुत ही ज्यादा लोकलाइज्ड था, यहीं पे ही था ओनली. सेकंड टाइप का हेमेटोमा हमने देखा तो थोड़ा और ज्यादा लॉन्ग था, देखा. जब हम थर्ड हेमेटोमा की बात करें, वी आर मूविंग इनसाइड द ब्रेन. स्लोली स्लोली हम किधर जा रहे हैं? पहला सबसे बाहर की तरफ था, सेकंड उससे थोड़ा इनसाइड था, थर्ड इज मोर इनर टू द और मोर नियर टू द ब्रेन. सो जब हम थर्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे दिस विल स्प्रेड टू मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन, पूरी जगह स्प्रेड हो जाएगा. तो इससे क्या समझ रहे हैं कि जैसे जैसे हम इनसाइड रीच कर रहे हैं, ब्रेन के पास में जा रहे हैं, जो हेमेटोमा है वो क्या हो रहा है? वाइड होता जा रहा है, साइज जो उसकी इंक्रीज होती जा रही है. फर्स्ट लॉकलाइज छोटा सा था, लेंस शेप. सेकंड वन इज क्रिसेंट शेप. थर्ड वन इज द टाइप ऑफ हेमेटोमा व्हिच प्रेजेंट इन सीएसएफ एंड पूरा सीएसएफ स्प्रेड होगा. तो जहां जहां सीएसएफ होगा वहां पे आपका पूरा हेमरेज स्प्रेड हो जाएगा. तो इतना बड़ा आपको हेमेटोमा देखने को यहाँ पे मिलेगा. सो यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है, व्हिच वेसल रप्चर्ड हियर एंड कोज subarachnoid hemorrhage. वेसल, कौन सी वेसल्स के रप्चर होने से subarachnoid hemorrhage होगा? Which vessel caused the subarachnoid hemorrhage? Yes. So there is a structure which we discussed previously, and I hope you remember very well. The internal carotid arteries. Yes. Then, oh shit. याद है कुछ बनाया था हमने? That is known as circle of Willis. Circle of Willis. In this, these are the two internal carotid arteries. This is the anterior cerebral artery. This is the middle cerebral artery. This is the posterior circulation of brain cerebrum. So this is the posterior cerebral artery, right and left. This anterior connected with anterior cerebral artery, anterior communicating artery, and anterior connected with the posterior communicating artery. And this circle is known as circle of Willis. Now the question is that where this circle of Willis exactly located in our brain? In which area the circle of Willis present? Where this circle of Willis is present in our brain? In the cerebrum, in the meninges, or in the bone, or in ventricles, or somewhere where? कहाँ होता है? Where is this located? In which part of the brain this circle of Willis is present? Cerebrum, meninges, ventricles, जहाँ इसकी इच्छा हो. Where it is located? So the location of this circle of Willis is not fixed because it is in floating state. It is present in floating state, and floating ब्रेन में सिर्फ किसमें हो सकता है? एक ही फ्लोटिंग, मतलब वाटर के अंदर कुछ फ्लो कर रहा है, उसी को बोलते हैं फ्लोटिंग. और वाटर कौन है? ब्रेन का. सो दिस इज द सर्कल ऑफ विलिस व्हिच इज प्रेजेंट इन योर subarachnoid space. कहां होता है ये? Subarachnoid space में होता है. इट्स फ्लोटिंग इन योर CSF. इट इज नॉट अ फिक्स्ड स्टेट, इट इज अ मूविंग कंपोनेंट एंड इट प्रेजेंट इन योर subarachnoid space. In this circle of Willis, there is a problem. Sometimes the vessels of this circle of Willis will bulge out and they will form a specific type of structure which look like a berry. बेर जानते हो? बेर, ऐसा बेरी बन जाता है. So this is known as bulging out of the vessels like this. What is this structure? Or this is known as aneurysm. This is known as aneurysm. When the vessel wall is bulged out
that will form an aneurysm, and this is look like a berry, that's why it is known as berry aneurysm. It is known as berry aneurysm. So it is an berry aneurysm. Berry aneurysm. Aneurysm is a outpouching of a vessel, and when vessels is outpouched, the vessel जैसे enlarge होगा, the wall of the aneurysm is very thin. Wall of the aneurysm is very thin, and due to over pressure inside the brain or due to sudden injury in the brain, this aneurysm will rupture and person will have bleeding. This aneurysm will rupture and person will have bleeding. And now this aneurysm, this circular vein is present in which area? Subarachnoid space. So this blood will present in which area? Subarachnoid space, and this hematoma is known as subarachnoid hemorrhage or hematoma. Clear? Now अब आपसे पूछे what is the cause for subarachnoid hemorrhage? The most common cause is rupture of aneurysm. That is the most common cause. Which is the most common cause for subarachnoid hemorrhage? The rupture of aneurysm. That is, or berry aneurysm is known as the most common cause for this subarachnoid hemorrhage. Now in this condition, there is a condition like when person appears to the hospital. When a person appears to the hospital, you are collecting a history and patient saying, I am having severe unbearable pain. ऐसा severe headache हो रहा है in head. Headache, it's not a pain, मतलब headache. बहुत severe headache हो रहा है जो person सहन नहीं कर सकता. Unbearable headache is there. Very severe pain is there. And when you are examining the person head or physical examination is going on, there is no any type of history और कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं दिख रही जैसे हेड इंजरी का आपको इंसिडेंट मिला हो. देयर इज नो इंसिडेंट रिलेटेड टू हेड इंजरी. आपने कलेक्ट किया हिस्ट्री, उसमें पेशेंट ने नहीं बोला कि मैंने कोई मेरा कोई ऐसा कुछ हिस्ट्री है, या फिर आपने ऑब्जर्व किया तो भी आपको कोई ऐसा मार्किंग या ऐसी कोई भी इंजरी नहीं मिली. देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी. नो हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी. स्टिल पेशेंट हैविंग अ प्रॉब्लम व्हिच इज नोन एज सीवियर हेडेक. बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है. फिर हम क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? Like one example जो मैंने देखा था, when I was posted in neurosurgical ICU in a private hospital, a patient came with the same history, severe headache. कुछ भी नहीं किया उसने, सिर्फ person बहुत सिर दुख रहा है इसके साथ आया. We did CT scan and a few other examination and find out that person is having hemorrhage hematoma, which is the SH, subarachnoid hemorrhage, and person is taken for OT immediately without any delay. When we open the brain, sprinkles of blood ऐसे फवारे बन गए, blood ऐसे move हो रहा है, बाहर निकल रहा है. Because artery is bleeding and it is a very dangerous type of, when circle of Willis start bleeding, it is also very dangerous. So ऐसे blood बाहर आ रहा है और उसको करना क्या, simply you just open the brain and clipping that vessel. जहाँ से blood आ रहा है उसको क्या करना है, clip करना है. That is simple procedure, but उसके लिए पूरा open करना पड़ेगा. That is more dangerous. So clipping किया और वो person बच गया था, but उसकी जो history collect करी तब क्या पता चला, the person is doing gym. Person क्या कर रहा था, gym कर रहा था, and gym के अंदर उसने बहुत ज़्यादा gym, excessive gym किया उस दिन, and due to that excessive gym workout, the sympathetic system is overstimulated and it increase the pressure inside the brain, and that person is having an aneurysm inside the brain. और वो aneurysm क्या हो गया, rupture हो गया, और उसकी वजह से वो severe headache person में देखने को मिला. So this is the classical presentation of which condition? SH. Now the diagnosis. So diagnosis confirmed by lumbar puncture. We will go for LP, lumbar puncture. When we remove the CSF, you will have a which type of CSF? Which type of CSF? Orthochromic CSF. The types of CSF is orthochromic. Orthochromic means रेड सीएसएफ को अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, ऑर्थोक्रोमिक सीएसएफ. सो ट्राई टू लर्न, मैंने पहले भी लिखवाया ये, याद करने की कोशिश करो कि इसको ये भी बोलते हैं ताकि वो याद रहे. बस आपको रेड ही याद रखना है बस. ऑर्थोक्रोमिक मींस आरबीसी प्रेजेंट रहेगी सीएसएफ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोक्रोमिक सीएसएफ. यस, तो सीएसएफ निकाला, रेड दिख रहा है, मतलब क्या हो गया, सबअरेक्नोइड हेमरेज हो गया. मैनेजमेंट क्या करेंगे, सो क्रेनिटोमी फॉलोड बाय क्लिपिंग ऑफ द वेसल्स. जो आर्टरी रप्चर हुई है उसको क्या करो, क्लिप लगा के बंद कर दो. दैट इज द मैनेजमेंट फॉर दिस प्रोसीजर. तो स्टार्ट करें. क्लियर है, सबअरेक्नोइड हेमरेज. A subarachnoid hemorrhage is bleeding into the subarachnoid space. Subarachnoid space में bleeding होना, that is known as subarachnoid hemorrhage. It may occur as a result of head trauma or spontaneously. अभी बोला, it may be due to the head trauma or it may be spontaneously without any head trauma. कोई हिस्ट्री नहीं है फिर भी हो गया. Such as from a ruptured cerebral aneurysm. Common site for this ruptured aneurysm is circle of Willis. Oh. लिख लिया. The first point, subarachnoid hemorrhage कौन से एरिया में प्रेजेंट रहेगा, तो आंसर होगा इन subarachnoid space, and you know very well about the subarachnoid space. The second thing, it is caused by either it may be any physical trauma or it may occur spontaneously because of the rupture of aneurysm. क्लियर है, वो करें. सो वी आर डिस्कसिंग विच टॉपिक, द मेन टॉपिक इज हेड इंजरी. उसको नहीं भूल जाना है, इट इज सब टॉपिक इन द हेड इंजरी.
We are primarily discussing about the head injury, types of head injury. There are two types of head injury. One is skull injury and second one is brain injury. In brain injury, we discuss three types: contusion, contusion, and the third one is hematoma. So we are discussing the third type of brain injury in head injury, and in third type of hematoma, we are discussing the third type of hematoma, that is subarachnoid hemorrhage. And इसके बाद एक बचा है, that is intracranial hemorrhage. ये लिख लिया? वो करें? Next. Symptoms. So person present with a severe sudden headache, severe and sudden headache without any causative factor. कोई cause हुआ ही नहीं, बिना किसी वजह से headache होने लग गया. It occurs with or without external trauma. Severe headache in our first type of hematoma, EDH or SDH, the person will not have that much severe type of headache. Mild headache हो सकता है, but यहाँ पे जो headache होगा वो बहुत severe headache होगा. These are the symptoms present in subarachnoid hemorrhage. Clear है ये? Move करें. Very soon we complete this system. मेरा सिस्टम जो है कुछ डिजीजेस ही बची है हमारे पास, उसको हम कंप्लीट करेंगे. 4-5 डिजीज बची है. हेड इंजरी होने के बाद में we have the degenerative disorder, Parkinson disease, GBS, multiple sclerosis, myasthenia gravis and Lambert-Eaton syndrome with trigeminal neuralgia and Bell's palsy and then spinal cord injury. So I think ये डिजीज और spinal cord का एक दो disorder है वो हम पढ़ेंगे. So we'll complete within 4-5 classes. Mostly in this week we complete this system if we have the regular classes. और फिर उसके बाद वो बाद में देखेंगे क्या पढ़ना है. नेक्स्ट मूव करें. नेक्स्ट इज डायग्नोसिस. सो डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे? लंबर पंक्चर रिवेल आरबीसी इन द सीएसएफ. रेड ब्लड सेल है आपको प्रेजेंट मिलेगी जब आप क्या करेंगे, पेशेंट का लंबर पंक्चर करेंगे. सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर लंबर पंक्चर, इट रिवेल द प्रेजेंस ऑफ सीएसएफ विद आरबीसी, रेड कलर ऑफ सीएसएफ. मैनेजमेंट. व्हाट इज द मैनेजमेंट? जस्ट क्लिपिंग ऑफ द वेसल बाय क्रेनियोटोमी परफॉर्मिंग. क्रेनियम ओपन करेंगे क्रेनियम को, जहां ब्लीडिंग हो रही है वहां पे टाइटेनियम क्लिप लगा देंगे. प्रॉब्लम सॉल्व. नेक्स्ट. मूव करें. नेक्स्ट subarachnoid hemorrhage. Last is management. So management is done by craniotomy and clipping of the rupture artery. In the management of this head injury, I will teach you about the craniotomy also. Head injury के मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे अभी craniotomy क्या होता है और उसका मैनेजमेंट क्या है. Last type of hemorrhage or hematoma is intracranial hemorrhage or ICH. So intracranial hemorrhage और ICH की बात करें, डिटेल में डिस्कस करें तो इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका पता ही नहीं चलता है. रोज होता रहता है, आपको भी होता होगा कभी कभी, थोड़ा बहुत चलता रहता है, उससे कोई ज्यादा इश्यू नहीं होता. क्यों नहीं होता देखते हैं. ये लिख लिया. नेक्स्ट. इंट्रासेरेब्रल और इंट्राक्रेनियल हेमरेज. So this is the cerebrum, midbrain, pons, medulla, spinal cord, cerebellum. Yesterday we discussed that multiple fine vessels. Oh, this should be in the blue color. These vessels taking venous blood from the cerebrum and join in a single artery, single vessel, sorry, vein, and it drain into the cerebral vein, there into the venous neural sinuses. So these are the fine vessels. ये क्या है? बहुत ही fine सी vessels होती है. Like when you are performing a surgery, the surgeon will cut multiple fine vessels. कट करते हैं? Yes or no? बहुत सारी fine vessels होती है, उनको कोरी से बंद कर देते हैं, टाई कर देते हैं, क्लिप लगा देते हैं. क्या उसको क्लिप करने से, टाई करने से क्या उस एरिया का नेक्रोसिस हो गया या कुछ प्रॉब्लम हुई वहां पे? सो सेम थिंग यहाँ पे, बिकॉज ऑफ क्रॉनिक प्रॉब्लम, यहाँ पे एक ही कोज होगा और वो होगा क्रॉनिक हाइपरटेंशन. दिस इज द कोज. व्हेन पर्सन इज हैविंग क्रॉनिक हाइपरटेंशन और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, this lead to rupture of this micro vessels. These are known as micro vessels. And this micro vessels, like ये micro vessels यहाँ की रप्चर हुई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे हेमेटोमा बन जाएगा. अगर यहाँ पे रप्चर हुआ तो यहाँ पे छोटा सा हेमेटोमा, इधर हुआ तो यहाँ पे छोटा सा हेमेटोमा. So when you are going for a CT scan, you will see multiple patches in the brain. When you are going for a CT scan, what you will see in the CT scan, there are multiple patches formation in the CT of the brain of the patient, and this is an indication for person is having intracranial hemorrhage. But it is not dangerous because it is occurred due to the rupture of micro vessels, and that will not bleed much amount. जो ज्यादा ब्लड नहीं आएगा और कुछ ज्यादा इश्यू भी नहीं होता है, न्यूरॉन जो ज्यादा डैमेज नहीं होंगे. तो इसका कोई मैनेजमेंट नहीं चाहिए. ओनली वन मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, दैट इज टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर. बस अपने बीपी को कंट्रोल करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और कुछ भी मैनेजमेंट या रिक्वायर्ड नहीं होगा. सो दिस इज द intracerebral hemorrhage occurs when a blood vessels within the brain ruptures, allowing blood to leak inside the brain. Occurs due to uncontrolled hypertension. किसकी वजह से होता है? तो uncontrolled बीपी की वजह से होता है.
No surgical management is required, only the management of hypertension. Uncontrolled hypertension should be treated for the management of this intracranial or intracerebral hemorrhage. Both are same, intracranial or intracerebral. More clearly the intracerebral. क्लियर है ये? मूव करें? The next is अरे लिख लिया. So इसमें कोई मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली क्या लिखना है? मैनेजमेंट इज अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन. बीपी जो है उसको क्या करना है? कंट्रोल करना है. दैट इज ओनली द मैनेजमेंट फॉर दिस. मूव करें. नेक्स्ट. सो आई विल शो यू द पिक्चर. एक पिक्चर दिखाऊंगा आपको, देखना है उसमें कौन कौन सा हेमेटोमा हो रखा है. सो दिस इज द फर्स्ट. इट इज SDH, EDH, ICH, SH. So it is EDH because it is a lens shape hematoma. Next, it is the SDH. It's a crescent shape hematoma. This is, it is present inside the brain. So it is ICH, intracerebral. So I hope अगर एग्जाम में ऐसा कोई भी इमेज आता है, CT या MRI या कुछ भी ऐसा पिक्चर आता है, तो you will easily identify the type of hematoma now. कर सकते हैं? कोई डाउट नहीं? Yes or no? चलिए मूव करते हैं आगे. नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेड इंजरी. अब हम वापस किस पे आ गए हैं? साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेड इंजरी. टाइप्स ऑफ हेड इंजरी नाउ कंप्लीटेड. द नेक्स्ट वन इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेड इंजरी. व्हाट आर द कॉमन साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट इन केस ऑफ हेड इंजरी? सो इन केस ऑफ हेड इंजरी, द पर्सन विल हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ दिस symptoms. First is the altered ICP. Obviously, when person is having injury in the head, जब head injury होगा तो उस कंडीशन में ICP क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि ब्रेन क्या हो रहा है? स्वेल आउट होगा और उससे क्या बढ़ेगा? ICP बढ़ेगा. और ICP के सिम्टम्स हमने पढ़ लिए सारे. नेक्स्ट, सीजर्स. बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दिस ICP, दिस लीड टू सीजर्स. द नेक्स्ट वन इज फोटोफोबिया एंड ब्लड विजन. पढ़ाया था फोटोफोबिया एंड ब्लड विजन. फोटोफोबिया इज एन एब्नॉर्मल रिएक्शन टू लाइट. ब्लड विजन, इसके क्वेश्चन आया था ब्लड विजन का. ब्लड विजन क्वेश्चन था इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्टम व्हिच प्रेजेंट इन केस ऑफ हेड इंजरी, और उसमें ऑप्शंस था सीइंग स्टार्स. ऑप्शन क्या था उसमें? एक सीइंग स्टार इज अ टाइप ऑफ क्लासिकल प्रेजेंटेशन सीन इन व्हिच कंडीशन. ऑप्शन था हेड इंजरी. तारे दिखना, दिखते हैं? सिर फोड़ के देखो, भी दिखते नहीं, ऑटोमेटिक दिखने जाएंगे. दैट इज नोन एज ब्लड विजन, सीइंग स्टार. नेक्स्ट, bleeding from the nose and ear. Obviously, when the vessels are ruptured, hematoma is there, then person will have the bleeding from the nose or the bleeding from ear. If person is having bleeding from the nose or bleeding from the ear, this is a dangerous condition. It is an emergency condition. Immediately take the patient to hospital because person is having internal bleeding, hemorrhage हो रहा है और आप तुरंत hospital लेके जाए उसको. The next one is otoroia. सुना है? Oto means ear, roya means secretions. So watery secretion from ear, उसको हम क्या बोलते हैं? ओटोरोइया. एंड राइनोरिया, दैट इज वाटरी सिक्रेशन फ्रॉम नोज, रनिंग नोज. जब नोज से वाटरी सिक्रेशंस आ रहे हैं या फिर ईयर से वाटरी सिक्रेशंस आ रहे हैं तो उनके दो टर्म्स ओटोरोइया एंड राइनोरिया. ए पर्सन इज suffering with these two condition or these two classical symptoms are present in the patient, this is also very dangerous. It may be possible person is having some normal cleft, or it may be possible person is having CSF. If it is CSF, then person is having leakage from the brain में इंजरी हुआ है, कहीं ना कहीं से स्कल से लीक होकर बाहर आ रहा है. सो इमीडिएटली गो फॉर द मैनेजमेंट, सर्जरी करना पड़ेगा. तो आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना होगा. ओटोरोइया एंड राइनोरिया जो आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है कि सीएसएफ है या नॉर्मल फ्लूइड है. नेक्स्ट इज हेमरेज. ऑब्वियसली अभी पढ़ा है पूरा हेमरेज. व्हेनेवर पर्सन इज हैविंग हेमरेज और हेमेटोमा फॉर्मेशन इन हेड इंजरी, टू एरियाज और इन हेड इंजरी टू स्पेसिफिक एरियाज वेयर द हेमेटोमा इज फर्स्टली अपीयर, एंड दीस एरियाज आर, वन इज अ लूज स्किन अराउंड आईज. ये जो स्किन है बहुत लूज होती है, दिखता है यहाँ की स्किन टाइट है लेकिन यहाँ पे क्या है? लूज स्किन है. सो ब्लड इजीली फिल्टर्ड इन दिस एरियाज. नेक्स्ट थिंग इज बिहाइंड द ईयर, दिस स्किन इज आल्सो वेरी लूज, यहाँ भी ब्लड फिल हो सकता है. सो दिस टू एरिया वेयर द ब्लड इज फिल्टर्ड एंड हेमेटोमा फॉर्मेशन इज देयर. व्हेन दिस एरिया अपीयर रेड और डार्क कलर, दिस इज नोन एज रैकून्स आई और पांडास आई. एंड व्हेन दिस एरिया इज हैविंग एक्मोसिस और रेडनेस और डार्क कलर, दिस इज नोन एज, that is known as Bettel sign.
वो होता है बेटल और उसमें दवाई मारते तो यहाँ बड़ा सा रेडेड हो जाता है, बेटल साइन. सो बेटल साइन इज देयर. सो उसकी बात करते हैं अगली स्लाइड पे. Racon's eyes or panda's eye, which is known as periorbital ecmosis, and betal sign ecmosis behind the ear. This is the presentation. The redness which is present around the eyes is known as Racon sign, and the this is present behind the ear is known as betal sign. So sometime ये भी पूछा जाता है एग्जाम में बेटल साइन और रेकोन्स आइज के बारे में, तो ये ध्यान रखें आप, बेटल साइन और रेकोन्स आइज और उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन याद रहेगा. इट इज द क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हेड इंजरी. These are the symptoms of head injury. Symptoms of head injury. Next, the diagnostic measures or diagnostic evaluation. How to diagnose an head injury. कर सकते हैं, अब तो सब पढ़ा दिया, इतना सब पढ़ा दिया, कर लेंगे, स्किप कर दें. नेक्स्ट लिखा. सो ये इमेज एग्जाम में आता है, तो आप ये आंसर देना है आपको. देखिए उसको, आइज के राउंड है तो रेकोन्स और पांडाज आई, और ईयर के बिहाइंड है तो the betal sign or ecmosis behind the ear. Next, move करें. Next is the diagnostic evaluation in case of head injury. So we will have a series of tests before the management, and these tests are, the first one is we will go for the initial assessment. In initial assessment we will assess the general जो भी हमारे vital sign, BP, TPR जो भी होते हैं assessment करेंगे. So first we go for the physical examination. A healthcare provider check vital signs, neurological function, and the physical state of the head and neck. It is very important to assess the neck and head condition. If you are suspecting an injury in the neck region, then our first responsibility is immobilization the neck. So you have to assess the patient first for the neck injury. If you are sure that no neck involvement, most of the time whenever patient is having head injury, we always suspect patient is also having नेक इंजरी, और हम उसको हमेशा क्या रखते हैं, इमोबिलाइज रखते हैं टिल द टाइम ऑफ डायग्नोसिस. जब तक डायग्नोस नहीं होगा तब तक आप उसको इमोबिलाइज रखेंगे. सो यू शुड असेस द वाइटल साइन, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ हेड एंड नेक. विद द न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए आप क्या असेस कर सकते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल और जीसीएस. दिस स्केल असेस अ पर्सन्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड न्यूरोलॉजिकल लेवल. सो जीसीएस पढ़ लिया ऑलरेडी हमने, वी कंप्लीटेड ऑलरेडी द जीसीएस. वी विल गो फॉर द ग्लासगो कोमा स्केल. द स्केल कंटेन 3 to 15 मार्क्स. 3 to 15 होता है विद डिफरेंट 3 to 8. 8 it's for severe injury, 9 to 12 moderate, and 13 to 15 mild or normal. So Glasgow scale and physical examination. Take clear? It is an initial assessment. After the initial assessment we will go for specific test or specific examination. अरे जस्ट लिखना है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ग्लासगो स्केल. ये क्यों लिखना है, डॉक्टर ऐसे करेगा, वो करेगा, हम ऐसे करेंगे, करना ही है तो आप ये काम है, कौन आके करेगा है. यस, वो करें. नेक्स्ट, मूव करते नेक्स्ट. डायग्नोस्टिक नहीं लिखा कोई काम में, कुछ ही लास्ट नोट सेट में वो सेलेक्ट होकर आई थी अभी गर्ल्स होती है, और कंटिन्यू स्क्रबिंग विदाउट टचिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और एनीथिंग. एक दिन किया, फिर कि व्हाई आई विल स्क्रब एवरी डे, क्या है तो मैं क्यों स्क्रब करूं, मैं नहीं करूंगा कि नहीं. ऑनलाइन स्टूडेंट थी वो. अब इश्यू क्या होगा कि मैं या जो भी मेरे साथी एसएनओ जो भी होते हैं, हम 3 एसएनओ हैं कि अधजल गगरी सलकत जाए, आधा राजा है. सो वो सबसे मेजर केस था, उसमें हम छोड़ के गए, दैट इज विपल प्रोसीजर. अब उनके साथ साथ इंचार्ज को भी प्रॉब्लम, केस तो करवाना पड़ेगा. जो हम आपके लिए बोल रहे हैं आप, फिर कोई नहीं दूसरा करेगा वो. तो जब हम किसी भी वर्क प्लेस पे आप जाओगे तो फर्स्ट स्टार्टिंग पीरियड होगा वो बहुत हेक्टिक होता है, लेकिन जैसे जैसे 1 year और 2 years आप तो चाहोगे नहीं लर्निंग सोएंगे कैसे, तो ये देखो सो के करो. फ्रॉम द फर्स्ट इमेजिंग टेस्ट सीटी स्कैन, इमेजिंग टेस्ट यानी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो हम करते हैं, रेडियोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं उसकी हम बात करें. सो इमेजिंग टेस्ट के अंदर हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं. Yes, so we'll go with the CT scan, computed tomography or CT scan. As CT scan is often the first imaging test used to head injuries. Question कभी-कभी पूछ ले कि अगर head injury हुआ तो first test कौन सा करोगे? Because the CT scan is a test which performed within 1 minute or 2 minutes. 1 से 2 मिनट में किया जा सकता है. MRI will take time and other investigation will take time, but CT scan will give you immediate result. इसलिए first head injury हुआ तो सबसे पहले क्या एडवाइस करेगा डॉक्टर? Go for CT scan. Immediate test के लिए, result के लिए CT scan. Either it not provide clear imaging of compared to the MRI. MRI will provide you more clear imaging, but MRI will take time. So MRI हम करेंगे बट बाद में कर सकते हैं. पहले क्या करना है, सीटी करके आइडेंटिफाई करना है, एंड इफ इट इज अ डेंजरस टाइप ऑफ हेमेटोमा देन पेशेंट टेक टू द ओटी फर्स्ट. पहले ओटी में लेके जाएंगे.
It provides detailed image of the brain and can detect fractures, bleeding, swelling and other abnormalities. So जब आप सीटी स्कैन करेंगे तो जो भी ब्रेन में abnormalities है वो सारी आप इसमें फाइंड आउट कर लेंगे. Yes? हाँ उसकी भी बात करते हैं. आईसीयू मीन्स जब हम आईसीयू की बात करते हैं तो आईसीयू इज नॉट ए सिंगल. आईसीयू का मतलब सिर्फ आईसीयू नहीं होता है, आईसीयू बहुत सारा होता है. सो आईसीयू का मतलब होता है जैसे एक हम पढ़ते हैं ए आईसीयू, एडल्ट आईसीयू, एक हम पढ़ते हैं पी आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू, एक हम पढ़ते हैं एन आईसीयू, यूनिटर आईसीयू. देन उसके बाद सर्जिकल आईसीयू लाइक न्यूरो सर्जिकल आईसीयू, देन ट्रांसप्लांट आईसीयू. बहुत सारे टाइप्स होते हैं. सो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी जो हमारे डायरेक्टर साहब आए हैं, ही इज फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़. पीजीआई चंडीगढ़ से आया है, बहुत ही अच्छा आदमी है. कहने का मतलब वो अच्छा काम कर रहा है. क्या अच्छा काम कर रहा है? प्रीवियसली क्या होता था, व्हेनेवर अ पेशेंट इज रीच टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जब भी कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता, द गार्ड व्हिच इज स्टैंडिंग आउटसाइड द इमरजेंसी, बाहर खड़ा है, वो बोलता बेड नहीं है, एमडीएम लेके जाओ. ही इज द पर्सन हु डिसाइडिंग दैट कि बेड नहीं है अंदर, तुम वहां लेके जाओ. भाई तेरे को क्या पता बेड है? गार्ड तेरा काम गार्डिंग करना है, तुझे किसने बोला बेड नहीं है? सो पहला प्रॉब्लम ये था. ये एम्स अगर हम कहीं जाते हो, ऐसे किसी को बोलते तो मैं एम्स पे उल्टा हमारे पे चढ़ जाते. एम्स में हो, मैं वहां गया, मुझे बेड नहीं मिला, तुम वैसे हो, ये अरे भाई हम नहीं थे, भाई हमें क्या पता तेरे को बेड मिला. उल्टा वो चिढ़ जाते हैं एम्स के नाम से, क्योंकि एम्स बदनाम है जोधपुर एम्स. सो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसने क्या किया, जितने भी पेशेंट्स वो एम्स में आएंगे वो सारे पेशेंट इमरजेंसी के अंदर आने चाहिए और उस पेशेंट को कहीं पे भी कोशिश जहां भी बेड मिले पर उस पेशेंट को एडमिट करना है, वापस नहीं भेज सकते. इफ यू आर सेंडिंग बैक टू द पेशेंट, देन उस पेशेंट के रिलेटेड कंसर्न जो भी एचओडी या उस डिपार्टमेंट का जो भी पर्सन है, जो भी डॉक्टर एचओडी होता है, उसको इन्फॉर्म करना है उसी टाइम, चाहे अब रात की 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सुबह 5, कुछ भी हो रहा है, फोन करके बताना है कि सर बेड नहीं है इसलिए मैं वापस ज्वाइन कर रहा हूं. एंड दैट पर्सन रिपोर्ट इन द अर्ली मॉर्निंग टू द डायरेक्टर कि आज ये पेशेंट को हमने वापस भेजा क्योंकि ये बेड नहीं था. एंड अगर उसका रीजन सही नहीं होगा तो उसको, तो ये कोई भी अपने ऊपर लेना नहीं चाहिए, इसलिए सारे पेशेंट एडमिट होना स्टार्ट हो गए, सबके लिए बेड आ गया. दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि आईसीयू बेड नहीं होते, बहुत बड़ा आईसीयू बनाया फिर भी बेड नहीं है, तो अब क्या करें? इन आईसीयू देयर आर 4 बेड व्हिच इज रिजर्व्ड प्रीवियसली फॉर सडन इमरजेंसी. ऐसी इमरजेंसी आ गई कि इनको तो रखना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए. वो 4 बेड हमेशा रिजर्व रहते थे. नॉर्मल आईसीयू पेशेंट के लिए ना रखा, उनको किसके लिए रखा? सडन इमरजेंसी. लाइक ओटी में कोई केस चल रहा है, पहले उसके लिए कोई प्लान रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन सडनली अभी बेड की रिक्वायरमेंट, अब क्या करें? तो वो जो रिजर्व बेड है उसको मिल जाता था. डॉक्टर ने बोला ये आईसीयू वाले सारे बेड नॉर्मल कर दो, कोई रिजर्व बेड नहीं है. रिजर्व बेड के लिए कहां बनाना है? 4th फ्लोर ओटी के अंदर 4 बेड रिजर्व कर दो. जब रिक्वायर्ड होगा तो बेड पेशेंट को कहां भेजना है? तो वहां पे मोस्टली कौन से पेशेंट आएंगे? जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स हैं, जो ओटी के अंदर वाले पेशेंट है, अब इनको रिक्वायरमेंट है, उनको कहां भेजो? 4th फ्लोर ओटी. सो वो इन्फेक्टिव केस नहीं होंगे, वो ओटी वाले केसेस होंगे, वही आएंगे और वो 1 रात 2 रात तक वहां रुकेंगे और फिर वापस वार्ड में जाएंगे. एंड नेक्स्ट थिंग इज ओटी जो होता है वो सेपरेट जोन होता है, एंड जो पोस्ट ऑप एरिया होता है वो सेपरेट जोन होता है. इट इज कंप्लीटली डिवाइडेड, सेपरेट जोन होता है, बाहर होता है, वो अंदर होता है. सो इट इज वो क्रॉस नहीं करता है, वहां पे इन्फेक्शन जाने के चांसेस नहीं होते. सो ये कुछ चीजें होती है. नेक्स्ट अगला इमेजिंग टेस्ट हम क्या कर सकते हैं? एमआरआई, magnetic resonance imaging, MRI. An MRI may be used if more detailed images are required or needed if the symptom persists despite normal CT scan. अगर आपने CT scan किया और आप satisfied नहीं है, you are not satisfied with that imaging and person is having still problems, symptoms अभी भी appear हो रहे हैं, तो आप detailed examination के लिए क्या कर सकते हैं? MRI कर सकते हैं. MRI can detect brain tissues, damage, bleeding and other abnormalities. So more deep structures को identify करने के लिए हम क्या करते हैं? MRI. So these are the 2 imaging tests जो हम यहाँ पे कर सकते हैं. One is CT scan and second one is MRI. First test, 2 टाइप आपको पढ़ाए थे कल मैंने. वन इज एपिड्यूरल हेमेटोमा एंड सेकंड वन इज, अरे जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, लिख लिए. हाँ एग्जाम से पहले पढ़ा दूंगा, डोंट वरी. एग्जाम से पहले आप सारी पेडिग्री निकाल दोगे, सब कुछ आप सोल्व कर लोगे. जेनेटिक्स में कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, डोंट वरी. ऑल द जेनेटिक डिसऑर्डर, पेडिग्री एनालिसिस, सेक्स डिटरमिनेशन एंड ऑल द बेसिक्स, क्रोमोसोम, जीन एंड एवरीथिंग आई विल टीच यू इन डिटेल विद इन 5 क्लास कंप्लीट हो जाएगा. सो अभी एग्जाम 15 सितंबर को है, अभी तो 1 मंथ एंड फ्यू डेज रिमेनिंग है, तो हो जाएगा. डोंट, हाँ एग्जाम से पहले पढ़ा दूंगा, डोंट वरी. एग्जाम सर अभी क्या पढ़ा रहे सर? ओके, एंडोक्राइन स्टार्ट कर दिया. फाइन. डायग्नोस्टिक टेस्ट, सो वी विल गो फॉर द एक्सरे. एक्सरे कर सकते हैं. दिस मे बी यूज्ड टू चेक फॉर स्कल फ्रैक्चर और इंजरीज टू द नेक और स्पाइन. सो हमने बात किया था कि यू शुड इनिशियली असेस फॉर एनी टाइप ऑफ इंजरी इन द बोन, स्पेसिफिकली इन द नेक एंड स्कल एरिया. तो अगर सीटी करने में टाइम लग रहा है तो हम एक्सरे करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नेक में स्पाइनल फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है. डिटेक्ट करने के लिए तो हम एक्सरे कर सकते हैं. EEG to identify if the seizure is suspected, patient is having constant seizure, then we will go for EEG. तो gold standard to identify the seizure answer should be EEG, electroencephalography, if the seizure are suspected, and EEG can be used to detect abnormal electrical activity in the brain. And the ICP monitoring बता दिया मैंने already. Intracranial pressure monitoring. In severe cases, a device may be placed inside the skull to monitor the pressure inside the brain. We will insert a catheter
with the help of burr hole insert a catheter. That catheter is connected with the transducer. The transducer convert the this fluid pressure into the digital numbering में आपको शो करेगा. That is a transducer. बताया था पूरा, तो वो भी आप कर सकते हैं. These are other diagnostic tests for head injury. Next, मूव करें. अभी करंटली बहुत सारी थिंग्स जो है वो स्टडी चल रही है उन सब पे, और उस सारी स्टडीज के अंदर एक पॉइंट ये भी है, वो है आउटसोर्सिंग बेनिफिट और हार्मफुल इम्पैक्ट. तो इसीलिए फिर से मैं कह रहा हूं, आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या बन जाओ, नर्सिंग ऑफिसर. पता नहीं जिस दिन जज गई उस दिन आएगा रात की 12 बजे से आज से स्टाफ सारे क्या होंगे, आउटसोर्स पे होंगे. आउटसोर्सिंग का मतलब समझते हैं? Not contractual. Outsourcing is different. Outsourcing means the staff is taken with a third party. किसी ना किसी कंपनी जो है स्टाफ प्रोवाइड करती है. बहुत सारी कंपनीज होती है, जैसे आपने देखी होगी, जिसके अंडर बहुत सारे स्टाफ होते हैं. फिर वो कंपनीज, जैसे आप सिक्योरिटी कंपनीज देखते हैं, सिक्योरिटी की कंपनी है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, फिर उनको वहां भेजा जाता है उनके थ्रू. जैसे इंटेलिजेंस है या अदर जो भी कंपनीज है, वैसे ही अगर ये अच्छा लगा प्रपोजल, क्योंकि आउटसोर्सिंग में पैसे कम देने पड़ते हैं, स्टाफ ज्यादा काम करते हैं, डरते हैं वो कभी भी बाहर निकाल सकते हैं, डरेंगे ज्यादा काम करेंगे. सो मोर इफेक्टिव, लेस कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी इज मोर. तो भाई क्यों ज्यादा पैसे देने, नर्सिंग ऑफिसर परमानेंट बना गया, इससे क्या बना दो. और सबसे बेस्ट यही चल रहा है आज के टाइम में. मोस्ट ऑफ द रेलवेज की बात करें तो रेलवे धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है. तो ऐसे एम्स भी क्या हो जाएगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ वैसे हो जाएगा, फिर एम्स की जगह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है. तो इसलिए आप अभी क्या बन जाओ, परमानेंट हो जाओ. जितना जल्दी जॉब लगोगे उतना ज्यादा बेनिफिट है, बाद में पता नहीं क्या होगा. वो करें. नेक्स्ट, अभी कुछ रिसेंटली 5 अगस्त को ये स्टडी हुआ है, 5 अगस्त को ये एडवाइजरी निकाली गई है, जिसमें आउटसोर्सिंग इज द 64 पेज का पूरा निकाला है कि ये सारे एम्स इन्वॉल्व हैं और इसमें हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर वो सक्सेसफुल रहा तो पता नहीं कब करेंगे वो. चलिए आगे. नेक्स्ट, नहीं लिखा. द नेक्स्ट वन इज, बातें नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है. 200 400 अभी बहुत सारी पोस्ट है, 1000 2000 पोस्ट है, सब लग जाओगे परमानेंट है. बाद में देख लेंगे उनको जो है, हम तो लगे, आप भी लग जाओ, बाकी बाद में आउटसोर्स पाओ, मैं क्या करना है. यस और नो. तो इसीलिए अभी 713 पोस्ट तो रेलवे की है, जितमत पांडिचेरी की 200 कितनी 114 15 कितनी थी जो भी है. उसके अलावा आपके नॉर्थ सीट की आएगी 2-3 हजार तो कितनी आएगी. डीएसएसबी की है थोड़ी बहुत पोस्टें वहां भी. तो इतनी सारी पोस्टें में आप सब कहीं ना कहीं फिट हो जाओगे. अपने आपको लगा तो चिपका दो वहां पे, बाद में मस्त हो जाओ, मजे करो. नेक्स्ट, कॉग्निटिव एंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट. So for cognitive and neurological assessment, neuropsychological test, these tests evaluate cognitive function including memory, attention, problem solving, emotional. This is known as the क्या बोलेंगे, MMSE, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जहां पे आप कॉग्निटिव इंपेयरमेंट चेक करेंगे कि पेशेंट इज हैविंग नॉर्मल कॉग्निटिव पावर और एबनॉर्मल इंपेयरमेंट हुआ या नहीं हुआ. सो विल यूज द मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. सुना होगा इसके बारे में. इट इज अ 5 पॉइंट का होता है. टोटल नंबर ऑफ स्कोर इज 30. 5 पॉइंट्स में आपने अलग अलग पढ़े होंगे. ओरिएंटेशन, लैंग्वेज, देन अटेंशन, रजिस्ट्रेशन, एंड मेमोरी. मेमोरी नहीं होता है. सो दीज आर द 5 पॉइंट जो हम यहाँ पे देखते हैं. ओरिएंटेशन आप पता करते हैं, टाइम प्लेस पर्सन 3 नंबर का होता है. लैंग्वेज सबसे ज्यादा 9 नंबर का होता है. अटेंशन में 3 नंबर होते हैं. रजिस्ट्रेशन में 5 नंबर, इसमें भी 5 नंबर हो गए. 5 5 10 और 3 13 और 3 कम हो गए. किसमें ज्यादा होता है, कुछ तो कम है. ओरिएंटेशन में ज्यादा होते हैं, 5 होते हैं. 10 होते हैं. 10 नहीं होते. 10 कहां से होते हैं, 3 तो क्वेश्चन पूछते हैं. टाइम प्लेस पर्सन 3 नंबर होता है ओरिएंटेशन में, 5 होते हैं. 5 क्वेश्चन पूछ लो ये लो. सो कहीं ना कहीं कुछ होता है. अभी मैं डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, सर पढ़ाएंगे आपको डिटेल में. बट ये जो जो भी होता है डिटेल में कहां पढ़ाएंगे, साइकेट्री के अंदर. बहुत ही जल्दी आपका साइकेट्रिक नर्सिंग स्टार्ट होगा. जैसे ही मेरा नर्वस खत्म, क्या स्टार्ट होगा आपका, साइकेट्रिक नर्सिंग. और आप कंटिन्यू पढ़ेंगे साइकेट्रिक, उसमें ये मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पढ़ाया जाएगा. टोटल नंबर कितने होते हैं, 30. 5 पॉइंट का होता है टेस्ट जो हमने बताया. बाकी सिंगल नंबर जो है वो सारे सर आपको पढ़ा देंगे. और इस टेस्ट को हम यूज क्यों करते हैं, आंसर क्या लिखना है, टू असेस द कॉग्निटिव इंपेयरमेंट. नेक्स्ट, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमने टेस्ट किए थे, याद होगा. 3 टेस्ट बताए थे. द रॉम्बर्ग टेस्ट याद है, पेशेंट को बोलना है खड़े हो जाओ. रॉम्बर्ग टेस्ट एंड नीशियन टेस्ट एंड कैलोरी टेस्ट. 3 टेस्ट आप कर सकते हैं बैलेंसिंग चेक करने के लिए. सो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन टेस्ट, दिस टेस्ट असेस एनी इंपैक्ट ऑन द बैलेंस एंड मोटर कोऑर्डिनेशन. व्हिच ऑर्गन इज रिस्पांसिबल फॉर दिस, cerebellum. So these are the diagnostic tests for the head injury. Next, last part is management.
द नेक्स्ट इज, अरे क्या बचा और क्या बच गया? द लास्ट टेस्ट जो बचा है वो एग्जाम वाला टेस्ट बचा है, और वो बचा है द एग्जामिनेशन ऑफ द फ्लूइड विच कमिंग फ्रॉम नोज और कमिंग फ्रॉम ईयर्स। पता लगाना है वो क्या है, और उसके लिए हम एक स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं, तो वो भी तो आएगा। सो ग्लूकोज टेस्ट फॉर CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नॉर्मली अगर हम बात करें कैसे करेंगे ग्लूकोज टेस्ट, सो यू शुड चेक द RBS ऑफ द पर्सन। क्या चेक करोगे आप? RBS, रैंडम ब्लड शुगर, एंड इफ इट इज 90 mg पर DL, अगर आपने ग्लूकोज टेस्ट किया ब्लड से और आपको कितना मिला? ग्लूकोमीटर से 90 mg पर DL मिला। नाउ इन आवर CSF ग्लूकोज, जब हम CSF ग्लूकोज की बात करते हैं, द CSF ग्लूकोज इज 2/3 ऑफ RBS। जो RBS होता है उसका 2/3 किसमें होता है? CSF में होता है। सो 2/3 इज 60 mg पर DL। नाउ कलेक्ट द CS, जो भी फ्लूइड आ रहा है, कलेक्ट दैट फ्लूइड, जो भी नोज या ईयर से आ रहा है उसको आपको क्या करना है? कलेक्ट करना है, एंड चेक फॉर ग्लूकोज। स्ट्रिप लिया आपने, उसमें लगाना है और क्या करना है? ग्लूकोज देखना है। इफ ग्लूकोमीटर शोइंग यू द रिजल्ट इज 60 mg per DL और मोर, if the RBS is 90 and here in this fluid amount is 60 mg per DL, तो आप क्या बोलेंगे? The person is having leakage of CSF। and if it is 0 or 1 2 3 4, अगर नॉर्मल फ्लूइड है तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, 0 1 2 3 4 होगा। सो अगर ये है तो हम क्या बोलेंगे? The person is having normal fluid। क्लियर दोनों? तो आप टेस्ट कर सकते हैं, ये तो सिंपल सा टेस्ट है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोमीटर। किसकी हेल्प से? ग्लूकोमीटर लेंगे, स्ट्रिप वाला टेस्ट करेंगे और आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपके पेशेंट को CSF लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। द नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट इज हेलो रिंग टेस्ट, पॉजिटिव हेलो टेस्ट और रिंग टेस्ट। सो ये इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि एक पेशेंट इज सफरिंग विद रनिंग नोज और a fluid leaking out from the ear, then what is a nurse responsibility? So as a nurse your responsibility is you should collect that fluid, और in option लिखा होता है you should provide a tissue paper to the patient to collect this fluid or provide a gauze piece to collect that fluid to the patient। so आपको वहां पे या तो कलेक्ट करना है, either you can give tissue paper or gauze piece to the patient, so patient can collect that fluid on that tissue paper on the gauze piece, but it should be clean। so simply you should collect the fluid। when you are collecting the fluid, this is the gauze piece, so you collect the fluid on a gauze piece, and जो fluid है उसको क्या करना है? इस gauze piece के ऊपर पुट कर देना है। now it will appear centrally red, centrally it appear as a red, and on periphery it appear yellow। so we know that patient is suffering with head injury, and when head injury is there then person will have leakage of blood with CSF। blood is having RBC जब बॉडी से ब्लड से बाहर आ जाती है, when RBC came out from the blood, when it came in contact with air, RBC is having a specific property which is known as sticky nature in external environment। बाहर आती है वो क्या हो जाती है? चिपक जाती है, will start sticking to each other or on material। so these are the, ये क्या बीच में रेड कलर इज एन RBC। जब आप CSF को यहाँ पुट करेंगे, when you are putting the CSF here, the RBC will stick here on the gauze piece and that remaining fluid will move on the periphery। so this is the CSF, yellow color is CSF and red color is for RBC, and if this type of presentation is on the gauze piece then you will say it is the positive halo test for CSF। CSF के लिए टेस्ट क्या है? पॉजिटिव है, कर सकते हैं इजीली। so this is the positive halo test or ring test। when patient having rhinorrhea collect fluid on a swab on keep at clean surface, if centrifugal redness or the blood collection surrounded by yellowing ring, test is positive for CSF like this। very easy test, कर सकते हैं? वापस बताएं, बता दे, लिख लो एक बार। हेड इंजरी हुआ है, सो CSF और उसके साथ में क्या होगा? आपको उसको कलेक्ट करना है। दिस फ्लूइड कंटेन व्हेन पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद अ लीकिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम नोज और ईयर, यू जस्ट कलेक्ट दैट फ्लूइड, आपको उसको कलेक्ट करना है। दिस फ्लूइड कंटेन CSF विद RBC और ब्लड, बिकॉज़ हेड इंजरी हुआ है। सो CSF और उसके साथ में क्या होगा? फ्यू नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो फ्लूइड आपने कलेक्ट किया, दैट कलेक्टेड फ्लूइड आपको किस पे पुट करना है? ऑन अ गॉज पीस। दैट कलेक्टेड फ्लूइड फ्रॉम द नोज और ईयर प्लेस ऑन द गॉज पीस। नाउ इफ RBC इज देयर, अगर उस फ्लूइड में RBC है, ऑब्वियसली अगर हेड इंजरी हुआ तो RBC प्रेजेंट होगा। सो RBC इज स्टिकी इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, स्टिक यानी चिपकने वाली, चिपक जाती है, जहां पे होगी वहीं चिपक जाएगी, तभी तो क्लोड बनता है। आपने देखा होगा, बाहर निकलते हैं, अंदर नहीं होता है, बाहर निकलते क्लोड हो जाता है। सो जैसे ही आप फ्लूइड को पुट करेंगे, रेड ब्लड सेल विल स्टिक हियर, जहां पे आपने फ्लूइड डाला वहां पे सारी RBC क्या होगी? चिपक जाएगी, स्टिक हो जाएगी। एंड द रिमेनिंग फ्लूइड व्हिच इज CSF, दैट CSF इज नॉट अ स्टिकी फ्लूइड, स्टिकी नहीं होता। जैसे आप नॉर्मली अगर कपड़े पे पानी डालते हैं तो आप देखेंगे आपने ड्रॉप किया, लेकिन थोड़ी देर में बहुत सारा एरिया गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर क्या होता है? स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है,
क्योंकि वाटर इज नॉट ए स्टिकी फ्लूइड, ये तो फैलेगा, स्प्रेड होगा। सेम यहाँ पे सीएसएफ क्या होगा, इस तरह से स्प्रेड होगा। एंड जब सीएसएफ स्प्रेड होगा तो ये सीएसएफ कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, येलो कलर, और ब्लड जो आरबीसी वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा, रेड कलर। तो ये आपका टेस्ट क्या हो गया, पॉजिटिव फॉर सीएसएफ। क्लियर? नेक्स्ट द मैनेजमेंट। सो इन मैनेजमेंट वी विल गो विद द मेडिकल मैनेजमेंट। इन मेडिकल मैनेजमेंट द ड्रग व्हिच यूज्ड इज ऑस्मोटिक डायuretic mannitol to decrease the ICP. So mannitol and hydrocortisone. Mannitol is an osmotic diuretic, already हमने पढ़ा है। Osmotic diuretics always assess intake and output, specifically output. Hydrocortisone is a steroid. It is used to decrease inflammation as it is an anti-inflammatory. The next is a symptomatic treatment. Whatever symptoms like patient is having pain, then give the analgesic, fever, then give the antipyretic or other जो भी symptoms आ रहे हैं. Then most important is surgical management. And in surgical management, what surgical management we will do? That is known as craniotomy. So we will go for the decompressive craniotomy surgery. If the craniotomy is performed to decrease the pressure or compression. If ICP is increased in the person and we are performing craniotomy to decrease the compression of the brain, that is known as decompressive craniotomy. To relieve the compression, that's why it is known as decompressive craniotomy. There is a condition, one is craniotomy. This is the craniotomy. And one is craniectomy. What is the difference between craniotomy and craniectomy? Don't say word C is only extra in the craniectomy. So in craniotomy, we are going to remove the cranium bone, a part of cranium bone. That is known as craniotomy. Removal of a part of cranium bone. That is known as craniotomy. And in craniectomy, C जो आ रहा है second spelling. In that condition, we are repairing the cranium bone. Means जो आपने bone remove किया था, the part of the bone which removed previously, that again place back to that part, that area. And repair of that cranium जो हम done करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, craniectomy. So in some cases, like person is having increased ICP for 1 month or 2 months or 3 months, then we will remove the cranium bone for 3 months. 3 महीने तक हम उसको हटा के रखेंगे. After 3 months, when the pressure is completely decreased, the person is now normal, everything is normal, then we will again place back the cranium bone here and suture ऊपर कर देंगे. This is known as craniectomy. But the problem is that for 3 months जो cranium आपने out किया, वो क्या करेंगे, उसका कहाँ रखेंगे? So most safe area where this bone can be placed, that is the peritoneal space between the peritoneal layer and your the skin layer, abdominal layer. उसके बीच में क्या करेंगे, space बना के अंदर रख देंगे. And it will be safely kept for 1 month, 2 month, 3 months, 6 months. After 6 months, when patient is recovered, then we remove again that cranium and वापस place कर देंगे. Yes. So this is the craniotomy and craniectomy. तो start करें. What is craniotomy? Next, avoid suctioning. No suctioning in head injury. Always remember it, when patient is having head injury, not only suctioning, everything is avoided with the nose. Nose के through सब कुछ avoid करना है. Like nasal suctioning, nasal intubation, angio-tube insertion, and nasal airway insertion. These all things should be avoided in patient with head injury, because if you are putting this thing inside the nose and they will stuck on the base of the skull. तो skull का base है, उस पे touch होगा, and sometime it can cause leaking of the CSF. तो leakage of CSF को prevent करने के लिए nose से head injury के patient में कुछ भी आपको नहीं करना है. Yes, no intervention should be done through the nose in case of a patient suffering with head injury to prevent the leakage of CSF. Next is craniotomy. So craniotomy is a procedure which is used. Intervention should be done through the nose in case of a patient suffering with head injury to prevent the leakage of CSF. Next is craniotomy. So craniotomy, brain, most of the time is used to decrease the compression of the brain. Compression of brain most of the time. Surgical procedure that involve an incision through the cranium to remove accumulated blood or a tumor. Complication of the procedure include increased ICP from cerebral edema, hemorrhage or obstruction of the normal flow of CSF. When you are going for a craniotomy, it may be possible due to the damage in this neuron of the brain that lead to edema. It may be possible hemorrhage is there. It may be possible the pathway of the CSF पढ़ा था हमने. Due to surgical procedure, it is obstructed and person will have the hydrocephalus. So ये problems भी आपको ऐसे complication देखने को मिल सकती है.
Surgical procedure that involve an incision through the cranium to remove the accumulated blood or tumor. टेस्ट के लिए सारे पढ़ के आए, हेड इंजरी जो हमने पढ़ा है पूरा, उसके बाद कुछ और डिजीजेस जो मैं कंप्लीट कर दूंगा बिफोर द टेस्ट। आई थिंक सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा मैं, मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, तो उनको पढ़ते रहें। नेक्स्ट मूव करें। यस, नेक्स्ट इज इंक्रीज आईसीपी, हेमेटोमा और सीएसएफ ऑब्स्ट्रक्शन। बस 3 ऐसे लिखना है, पूरा का पूरा ऐसे कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना है। मूव करें। कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्लिनिटोमी, इंक्रीज आईसीपी बिकॉज ऑफ सेरेब्रल एडिमा, देन हेमेटोमा और द हेमरेज और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नॉर्मल फ्लो ऑफ सीएसएफ। सो ये आईसीपी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करवा सकते हैं सारे। नेक्स्ट, द प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन व्हेन वी आर गोइंग फॉर क्लिनिटोमी एज ए नर्स, प्री ऑपरेटिवली क्या क्या पॉइंट्स जो है वो हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करने हैं, ध्यान रखने हैं। सो फर्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट एंड फैमिली। ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इट मे बी पॉसिबल ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट एंड फैमिली, एज when we are performing any type of surgical procedure on the head related to the brain, the person will think that this is the most critical problem, सबसे बड़ी थिंग्स है जो हमारे साथ होने वाली है, और हम बचेंगे नहीं बचेंगे पता नहीं, और इस वजह से बहुत सारे वो ट्रीटमेंट भी नहीं करवाते रिलेटेड टू ब्रेन। सो यू हैव टू एक्सप्लेन द पेशेंट एज वेल एज टू द रिलेटिव टू डिक्रीज द एंजाइटी। जो भी उनकी एंजाइटी है उसको रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना है, कंप्लीटली प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। सो एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एज वेल एज टू द फैमिली मेंबर। ये जो नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, व्हेन वी आर गोइंग फॉर क्रेनिटोमी वी हैव टू रिमूव ऑल द स्कैल्प हेयर। बाल सारे क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। यस और नो? विदाउट रिमूविंग द हेयर्स हम क्रेनिटोमी परफॉर्म नहीं कर सकते। एंड आप जब हेयर्स को रिमूव करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। लाइक फर्स्ट थिंग इज, पर्सन जो जब हेयर नहीं होता है तो आपने देखा नॉर्मल सर्जिकल तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर हम नॉर्मल पर्सन की भी बात करें जिसके हेयर नहीं है, उनको थोड़ा अजीब लगता है, शर्म आती है। दे विल स्टार्ट वेयरिंग केप और समथिंग, विग पहनना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। एंड स्पेसिफिकली इफ द पर्सन इज फीमेल पर्सन, then it is more problematic. Yes, so like in chemotherapy all the hair is lost, alopecia is there, and वहां पे जो person है वो socially अपने आप को feel very low in the society because of loss of hair. So यहाँ पे आप जब hairs को remove करेंगे, if you are removing the hairs in the ward or in patient को बोल रहे घर से remove करके आए, तो person को anxiety क्या होगी, ज्यादा होगी। सर्जरी से पहले उसका level of anxiety और बढ़ जाएगा, उसको ये और प्रॉब्लम दिखेगा, है बाल भी नहीं रहे अब तो। So most of the time when we are performing craniotomy, the hair is removed in the operation theater on the table before surgery. With the trimmer, we have the trimmer inside the OT, so we remove all the hair with the trimmer inside the OT. So patient anesthesia होने के बाद उसको क्या पता चलेगा हेयर निकालेंगे नहीं, बस उसको बताना है कि we will remove the hair inside the OT. Without consent किसी के बाल नहीं निकालने, otherwise the patient will make a case on you. It is very important when we are in operation theater, we need a consent for removing hair, we need a consent for the photography of the patient. Whatever surgery we are performing, and if we require a photograph of that body part or that thing, we need a consent from the patient कि हाँ आप ले सकते हैं और उनको पब्लिश करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। Without consent आप किसी का फोटोग्राफ नहीं ले सकते। It is very dangerous. So hairs निकालने और कहाँ पे, OT के अंदर। And if you are removing the hairs in the ward or a patient is coming from the house or home, then you cover the head with something, जो भी है उससे कवर करके रखें ताकि पेशेंट को बुरा नहीं लगे। So prepare to save the client head as prescribed, usually done in the operating room, and cover the head with an appropriate covering. Next important thing is cultural belief. In some cultures the removal of the hair is not allowed. So like in Sikh, they person not remove the hair, I think they not remove the hair, नहीं निकालते, बट उनसे कंसेंट लेना, पूछना है कि भाई हमें हेयर्स तो हटाने ही पड़ेंगे, काट निकालने ही पड़ेंगे, उसके बिना सर्जरी नहीं होगा, और वो कंसेंट देंगे तभी लेना है। बिना उसके कंसेंट से हेयर निकाल दिए वो पता नहीं बाद में क्या करेगा। यस, नेक्स्ट, स्टेबलाइज द क्लाइंट बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले पेशेंट को एवरी एस्पेक्ट से स्टेबल करना है, लाइक उसका फिजिकली, मेंटली, हर एक पॉइंट जो है, एंड क्लिनिकली एवरीथिंग शुड बी स्टेबल। जो थिंग है वो सारी स्टेबल रखनी है, तो स्टेबल करके भेजें आप, उसको एक्सप्लेन करें, उसका इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करें, लेवल ऑफ एंजाइटी असेस करें, एवरीथिंग जो है वो स्टेबलाइजेशन रखना है यहाँ पे। These are the pre-operative things जो आपको करनी है। Next, post-operative. After craniotomy, we will go for post-operative intervention after craniotomy. So the most important thing after the craniotomy, that is assessment of the neurological condition. If decrease हो रहा है, that is an thing is कि पेशेंट को बुरा नहीं लगे, निकालने ही पड़ेंगे लेवल ऑफ। पोस्ट ऑपरेटिव आफ्टर क्रेनियोटोमी,
We will go for post-operative intervention after craniotomy. So the most important thing after the craniotomy, that is assessment of the neurological condition. If decrease हो रहा है, that is an indication that patient is having increase ICP, and that lead to more and more problem. So every hourly you should assess the patient neurological status, monitor the vital sign and neurological status every 30 to 60 minutes, or every hourly भी आप लिख सकते हो. So vital and neurological assessment is very important. Then monitor, maintain head of the bed at least 30 degree unless otherwise contraindicated. If the head of the bed is elevation is not contraindicated in the patient, then you should elevate the head at least for 30 degree, and if it is possible then more than 30 degree, like 30 to 45 degree semi forward position you provide. Why person head is elevated for 30 to 45 degree? Yes, to decrease ICP, to by increasing venous drainage. Venous drainage बढ़ेगा gravity के force से, so gravity force will help you to decrease ICP. Monitor the increase intracranial pressure, and this can be monitored by sign and symptoms, and if patient is having a ICP monitoring device अगर लगा हुआ है, कैथेटर डाला हुआ है, तो उससे भी आप monitoring कर सकते हैं. Monitor for decreased level of consciousness, motor weakness or paralysis, aphasia, that is lack of speech, visual changes and personality changes. So these all are point जो ये mentions किया है, ये indicate कर रहे हैं कि पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली कहीं ना कहीं आपने अंदर से कुछ डैमेज किया. लाइक वन साइडेड विजन इज लॉस्ट, मींस आपने एक साइड का ऑप्टिक नर्व क्या कर दिया है, ड्यूरिंग सर्जिकली कट कर दिया. इफ पेशेंट इज हैविंग वन साइडेड पैरालिसिस, देन वन साइड ऑफ द बॉडी जो हेड है वो क्या कर दिया आपने, डैमेज कर दिया. सो ऐसे आप ऑब्जर्व करेंगे पोस्ट ऑपरेटिवली कि एवरीथिंग विल बी फाइन. सो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मोटर वीकनेस और पैरालिसिस, अफेजिया, इफ अफेजिया इज देयर देन it may be Broca's area is damaged, or either it may be Wernicke's area is damaged. Visual changes and personality changes. Clear? Post-operative assessment. Next. Clear? Next one. Don't write everything. कुछ आपको माइंड में भी रखने होते हैं. सारे नोटबुक में लिख दोगे तो फिर अंदर क्या रहेगा, हैं? इधर भी रखो कुछ तो. सब कुछ लिखने के लिए नहीं है. एवरीथिंग इज नॉट, आप ये तो सब जगह पढ़ ही रहे हैं हमारे बार. सो इसमें एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, हेड ऑफ द बेड एलिवेट रखना है, वो पूछा जाता है एमसीक्यू बस, बाकी सब तो पहले ही लिखा है. नेक्स्ट, मेंटेन द मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड स्लाइड हाइपरवेंटिलेशन फॉर द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स इज प्रिस्क्राइब्ड टू प्रिवेंट द इंक्रीज आईसीपी. सो ये बहुत बार बता दिया मैंने. टू डिक्रीज द इंक्रीज आईसीपी वी विल यूज द हाइपरवेंटिलेशन. व्हाट इज द कांसेप्ट बिहाइंड दिस, वापस पढ़ते हैं. सो आईसीपी अगर बढ़ा हुआ है और हम पेशेंट को क्या करेंगे, यहाँ पे हाइपरवेंटिलेट करेंगे, इंक्रीज्ड आईसीपी. इसको रिड्यूस करने के लिए, टेंपरेरी रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपर वेंटिलेशन करते हैं. कैसे ये करता है देखें. फर्स्ट थिंग, दीज आर द सेल्स, न्यूरॉन. ये क्या आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स. न्यूरॉन रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. ग्लूकोज ही है जिसके फॉर्म में न्यूरॉन न्यूट्रिशन लेता है, अदर कोई फॉर्म यूज नहीं करता है. If this oxygen is reduced in your body, or if the glucose is reduced in your body, then the first cell which having altered function is neuron. सबसे पहले फंक्शन किसका अल्टर्ड होगा, न्यूरॉन का, अगर ऑक्सीजन कम होगा या फिर ग्लूकोज कम होगा. So we are assuming that patient is having hypoxia. हम क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, पेशेंट को क्या हो रखा है, हाइपोक्सिया. This hypoxia lead to cerebral hypoxia. ब्रेन में भी ऑक्सीजन कम होगा, cerebral hypoxia. When brain is having hypoxia, cell is having less oxygen, then the function of cell will altered, and if it is constantly in the state of hypoxia, then the cell will start damaging. Inflammation will be there, damage will be there. So cell क्या होगा, hypoxia lead to cell damage, inflammation. This cell damage lead to inflammation, and when person is having inflammation, this lead to swelling, and this lead to increase ICP. So how decrease level of oxygen will increase the this ICP? When oxygen is not there in the brain, जब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं होगा तो उस कंडीशन में न्यूरॉन के पास ऑक्सीजन नहीं होगा. न्यूरॉन के पास ऑक्सीजन नहीं है तो न्यूरॉन क्या होंगे, डैमेज होंगे, और डैमेज होने से सेल क्या होगा, स्वेल, इंफ्लेमेशन इज देयर, एंड उससे क्या होगा, आईसीपी बढ़ेगा. क्लियर? दिस इज द फर्स्ट थिंग, कैसे होता है आईसीपी बढ़ना. सेकंड थिंग, अब आपने क्या किया, हाइपरवेंटिलेशन किया. हाइपरवेंटिलेशन का मींस आपने ऑक्सीजन दिया 100%, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में क्या दिया, ऑक्सीजन. व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दिस लीड टू कंप्लीटली डिक्रीज द चांस ऑफ हाइपोक्सिया. जब ऑक्सीजन इतनी सारी है तो क्या हाइपोक्सिया होगा, नहीं होगा. एंड व्हेन देयर इज नो हाइपोक्सिया, देन नो सेल डैमेज, एंड नो inflammation, then no swelling, and no swelling, then no increase in the ICP. So this is the mechanism how the ICP will reduce in case of increase oxygen. And one more thing, when we are increasing the oxygen in any part of the body, जब भी आप किसी पार्ट में ऑक्सीजन के लेवल इंक्रीज करते हैं, one two thing, हाइपोक्सिया, जब बॉडी में हाइपोक्सिया है, इट मींस उस एरिया को क्या लग रहा है कि मेरे पास ऑक्सीजन क्या मिल रही है, कम, तभी हाइपोक्सिया हुआ है.
So in hypoxic area, the oxygen amount is less. So that area will try to dilate the vessel. When vessel is dilated, it will lead to increase blood. उस पार्ट में ब्लड सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी, और ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो उससे ऑक्सीजन क्या मिलेगी? ज्यादा. ये इस वजह से वेसल को डायलेट करवा रहा है. बट व्हेन इन आवर ब्रेन hypoxia is there and the vessels in our brain is dilated, then it will increase the blood supply in our brain, and when blood supply increase in the brain, this lead to increase ICP. So this is the second reason why hypoxia increase the ICP. Now if you provide high amount of oxygen, this hypoxia is treated. Hypoxia नहीं होगा, in that situation vessel will not dilate, and when vessel is not dilating, then no increase in the blood supply, and जब increase नहीं होगा तो आपका ICP increase नहीं होगा. So with these two mechanism, ICP is increasing and providing the high amount of oxygen will reduce chances of these two mechanism. Clear? चलिए ये हो गया. आगे क्या है? Avoid extreme hip or neck flexion and maintain the head in a midline neutral position. When you are going for extreme hip or neck flexion, neck को ऐसे कर रहे हैं या फिर आप hip को ऐसे bend कर रहे हैं, in that situation the central nervous system will stretch. ये क्या होगा? Stretching होती है. Spinal cord ऐसे pull करेगा brain को, and in that situation there will be a chances for bleeding or more hematoma or more increase in the ICP. So always keep the patient in midline, head in the midline and neutral position आप रखें. ऊपर नीचे नहीं करना है हेड को. यस पेशेंट सी बात करते हैं उसकी. सो इन केस ऑफ सीओपीडी, ये लिख लिया. क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, सीओपीडी, ये लिख लिया. COPD, chronic obstructive pulmonary disease. First I'm telling you normal, then उसके बाद हम ICP की बात करते हैं. Normally क्या होता है? In case of COPD, अगर आपसे पूछे as adult you are an adult person, absolutely you are an adult person. You are breathing, obviously you are breathing. So there are two cases, one is CO2 and second one is oxygen. In your respiratory system, which gas is responsible for the stimulation of respiration in your body? Which gas? So in normal adult person, when person is not suffering with COPD, the gas which is responsible for the stimulation of respiration, that is CO2, carbon dioxide. But in case of COPD, the low level of O2, low level of oxygen is a trigger factor, trigger for respiration. Adult normal में trigger कौन करता है? CO2, low level of carbon dioxide. But in case of COPD patient, which gas triggering? Low level of oxygen. In case of COPD, if you are providing high amount of oxygen to the patient, high flow oxygen, यानी आपने मास्क लगाया या जो भी लगाया उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं आप, then person will get more oxygen. FiO2 is high, and जब high oxygen lungs में reach होगा, then the low oxygen will convert it into high level of oxygen. And when oxygen level is high, then respiratory system will think that now person is having sufficient amount of oxygen. जो low level of oxygen पहले क्या कर रहा था? Trigger कर रहा था. Now this high level of oxygen will not trigger the respiration. Already patient is suffering with COPD, and this high level of oxygen decrease the respiration and person will have more respiratory difficulty. So to prevent this condition, in case of COPD, we always give low level of oxygen. We will give 1 to 2 liter. More highest is 1 to 2 liter. उससे ज़्यादा कभी भी provide नहीं करते. 1 to 2 liter per minute oxygen with the nasal prongs, or the best way is a Venturi mask, जिसके थ्रू हम पेशेंट को provide करते हैं. Best is for COPD is Venturi mask, 2 liter maximum. So 2 liter से क्या रहेगा? लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन का जो मेंटेन रहेगा, उससे रेस्पिरेशन ट्रिगर होगा, और ट्रिगर होगा तो पर्सन ब्रीथ करेगा तो जो 2 liter आ रहा है उसको सारे वो क्या कर जाएगा? इनहेल करेगा और वो टिश्यू में मेंटेन रहेगा. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट the craniotomy, and in craniotomy we are discussing about the mechanical ventilation. So meaning of mechanical ventilation means the person is ventilated by a machine. Here person is not breathing. Here ventilation is provided by a machine. In mechanical ventilation we not require any trigger factor. यहाँ पे breathe कौन कर रहा है? मशीन करवा रहा है. बस पर्सन सेल्फ ब्रीथ नहीं कर रहा है, और जब सेल्फ ब्रीथ नहीं कर रहा है तो कोई इश्यू नहीं है. हम पेशेंट को क्या देंगे यहाँ पे? भाई मशीन से ब्रीथ करा रहे हैं तो वहां पे आप क्या करोगे? पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करेंगे टू प्रिवेंट. यहाँ पे तो पेशेंट क्या था? सेल्फ ब्रीथिंग था. When patient is in self breathing, you should provide low level of oxygen in COPD. When patient is in machine assisted breathing or mechanical ventilated, then you can provide whatever amount of oxygen you want to give to the patient. No issue, कोई problem नहीं है. Clear? So यहाँ पे ICP को डिक्रीज करने के लिए हम हाइपर वेंटिलेट करेंगे, चाहे पेशेंट COPD का है या किसी भी का है. बस कंडीशन इज दैट पेशेंट शुड बी ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर. पेशेंट शुड नॉट बी ऑन सेल्फ ब्रीथिंग. और ऑब्वियसली आफ्टर क्रेनियोटोमी पेशेंट सेल्फ ब्रीथिंग तो नहीं होगा. पेशेंट हमेशा COPD है तो वो मोर देन नॉर्मल पर्सन से ज्यादा टाइम तक वेंटिलेटर पर रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी किसकी प्रॉब्लम है? रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी. क्लियर? सो ये हो गया कंप्लीट. देन प्रोवाइड क्वाइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले भी पढ़ा था हमने, कूल एंड क्वाइट
adequate जो quiet environment है वो देना है ताकि environmental stimuli से ICP increase ना हो, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है. So provide cool and quiet environment to the patient. नहीं लिखा? Center done it to the patient and that dressing is known as cap line dressing, head cap और cap line dressing. And as a nurse you should know how to form a cape. Cape कैसे बनाई जाती है वो आपको पता होना चाहिए. So वो तो मैं नहीं बताऊंगा कैसे बनाते हैं, वो तो आपको आता ही होगा. Absolutely you know that how to form a cape. बनाते हैं, जानते हो? Your cap should be stay in the head, रुकनी भी चाहिए और पूरा कवर भी करना चाहिए. So simple सा वे होता है cape बनाने का. In forming the cape आपको क्या करना है? First you should make a round here, then you should cover the head like this. Completely ऐसे cover करना है. When head is completely covered, again round one more time and again cover the head. और ऐसे बनाई जाती है. वो आप प्रैक्टिकली करोगे तभी पता चलेगा, अभी पॉसिबल नहीं है. Next, monitor for the head dressing frequently for the sign of drainage. If any type of bleeding is there, any type of leakage is there, then dressing will be wet or in dirty color. So आप उसको monitor करते रहे. Dressing पे कुछ आ तो नहीं रहा है. Mark any area of drainage at least one each nursing shift for baseline comparison. What is the meaning of this line? क्या है इसका meaning? So the bag, collection bag. Most of the collection bag will be like 1 liter or 2 liter or 3 liter size. Smallest is 1 liter. So ये 1 liter bag है. And like this filled it, ये यहाँ तक fill हो गया. In the morning shift, when I completed my shift, it filled it here. So you should mark here. आपने एक marking कर दिया. And it is approximately like 50 ml. In the next shift, when evening shift is over, again the nursing staff will mark. And then we will calculate this amount is again 50 ml, this is 50 ml, means the loss is same in the both shift. And if it is 100 ml in this, then it is more than the morning shift. Or if it is less than 20 ml, then it is less than previous shift. So for that purpose, comparison purpose, you always mark the area. Otherwise, ये mix हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा morning में कितना था, evening में कितना था. So mark any area of the drainage at least once each nursing shift for baseline comparison. Monitor the drain which may be placed for 24 hours. Maintain suction on the drainage as prescribed. So कुछ जो drains होते हैं उनमें suction भी डॉक्टर orders करते हैं, तो जो order किया गया low suction वो pressure apply करें. अगर suction नहीं बोला है तो आप नहीं करेंगे. What is the normal expected amount of drainage in a drainage bag in a day? What amount is an expected amount? This is okay. इससे ज्यादा है तो abnormal है. Yes. So यहाँ पे मेंशन किया है measure drainage from drain every 8 hours and record the amount and color of the drain, color and drain. If the amount जो हम यहाँ बात करेंगे अभी in normally abdominal surgery or in any other large wound जो होता है वहाँ पे हम जो collection size बात करते हैं वो है less than 100 ml a day. That is for normal abdominal surgical procedure or other conditions. But this is not an abdominal surgery. It is not having a major cavity. यहाँ पे कोई बड़ी cavity नहीं है. It's a brain. और यहाँ पे 100 ml आएगा तो that is abnormal. वो ज्यादा है. नॉर्मली पूछे तो आंसर कितना देना है? लेस देन 100 ml फॉर एब्डोमिनल और मेजर सर्जिकल केविटी और प्रोसीजर है उसमें. सो ये लिख लिया, मूव करें, ये लिख लो. अगली स्लाइड पे देखते हैं इसमें कितना नॉर्मल होना चाहिए. पार्किंसन डिजीज पढ़ के आएंगे आप लोग. वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज पार्किंसन डिजीज. With Parkinson disease, if we have the time, then we will discuss about the trigeminal neuralgia also. A small disease, छोटा सा disease है. ये लिख लिया. The next is once in a day. दिन में आपको क्या करना है? एक बार यानी 24 hours में one time उसको empty करना होता है. And you should calculate the amount of drainage. कितना आया है? Mention in your chart जो होता है उसमें mention करना है. And color should be mentioned in the chart कि इस color का था, इतना amount आया है. So that will be help in the comparison with the next day. If this amount is decreasing, then we will remove the drain. And if this amount is increasing, then we will take the patient in OT again कि some bleeding is there. So the next one is the healthcare provider notify if the drainage is more than normal amount of 30 to 50 ml per shift. So ये shift के basis पे लिखा हुआ है 30 to 50 ml per shift. And per day अगर हम बात करें तो less than 100 ml. 13 to 3 is equal to 100 ml. So it should be less than 100 ml per day or in shift it should be 30 to 50 ml per shift. इससे ज्यादा है तो immediately डॉक्टर को क्या करना है? And this is per day. Inform to the doctor. So notify the HCP यानी healthcare provider if drainage is more than the normal amount of 30 to 50 ml per shift. Record strict measurement of hourly intake and output. It will help you to maintain the ICP. ICP को maintain करने में आपकी help करेगा intake and output. तो strictly आपको intake output यहाँ पे maintain करना है, monitoring करनी है properly. Clear है? Move करें. Next, maintain fluid restriction at 1500 ml per day as prescribed. So if you give more than 1500 ml, this will increase hydration, and when hydration is increasing, that lead to increase
आईसीपी, जब ज्यादा फ्लूइड देंगे तो उससे आईसीपी क्या होगा, और ज्यादा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो हमें इस हाइड्रेशन को 1500 ml तक लिमिट रखना है, उससे ज्यादा प्रोवाइड नहीं करना है। ये सारे वन लाइनर एमसीक्यूज कभी कभी आ जाते हैं और फिर आप सोचते रहते हैं अब क्या करें। लाइक ये ड्रेनेज का क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि नॉर्मल ड्रेनेज अमाउंट इन अ डे कितना होता है, तो दैट शुड बी लेस देन 100 ml पर डे। शिफ्ट के हिसाब से 30 to 50 ml, बट पर डे के हिसाब से लेस देन 100 ml। नेक्स्ट, पार्किंसन डिजीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज फॉर योर एग्जाम व्यू, तो इसीलिए कल उसके बारे में आप सोच के समझ के पढ़ के आए, बाकी जो बचेगा वो मैं पढ़ा दूंगा। यस, नेक्स्ट क्या है, लिख लिया? मॉनिटर फॉर डिसअरिथमिया व्हिच मे अकर एज अ रिजल्ट ऑफ, नहीं लिखना है आपको वैसे, ड्यूरिंग सर्जरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉस ऑफ फ्लूइड, एंड व्हेन फ्लूइड इज लॉस्ट द इलेक्ट्रोलाइट विल आल्सो लॉस, and electrolyte loss lead to calcium loss, potassium loss, and these two are the major electrolyte which related to your rhythm of the heart। जो हम रिदम की बात करते हैं उसके लिए मेन रेस्पॉन्सिबल आपके your calcium and potassium, so these are loss in the fluid during surgery, और लॉस होने से क्या होगा, अरिथमियाज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको कार्डियक मॉनिटरिंग भी करनी है कंटिन्यूअसली। ये आपने पहले पढ़ा होगा, ये भी नहीं लिखना है। कोल्ड कंप्रेशन हमने पढ़ा था, रेकॉन्स आइज एंड बेटल साइन, so whenever this type of edema is there you should apply the ice pack or cold compression। so cold and hot application पढ़े होंगे, hot application will dilate the vessel and increase the edema, but cold application will constrict the vessels and decrease the swelling। तो swelling को कम करने के लिए आपको क्या करना है, ice pack और cold compression to decrease this ecchymosis which is present near the around the eyes or behind the ear। provide the range of motion exercise, तो ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं। next, अरे नहीं लिखना है, मैं बोल रहा हूं तो भी लिखना है। to reduce edema use cold compression, बस इतना सा लिखना है, और नहीं पूरा लिखेंगे सर हम तो। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन इज अ कॉमन एप्लीकेशन एंड यू आर यूजिंग इन एवरीडे, हॉस्पिटल में, घर पे आप अपनी लाइफ में यूज करते ही है, नहीं करते हैं? जब भी कुछ लग जाता है कोल्ड लगाएंगे, ज्यादा काम किया तो गर्म पानी में पैर रखेंगे, वेसल डायरेक्ट करा के लैक्टिक एसिड कम करेंगे, तो वो क्या है, कोल्ड एंड हॉट एप्लीकेशंस है जो बेसिक लाइफ में आप यूज करते हैं। वो करें। नेक्स्ट, प्लेस, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, एमसीक्यू एग्जाम में पूछते हैं, वो है प्रिवेंशन ऑफ DVT। We know that in case of brain surgery, the patient will recover with a long time of period, and person required a long time of bed ridden, person लंबे टाइम तक क्या रहेगा, bed ridden रहेगा। So उस bed ridden की वजह से DVT हो सकता है। For the prevention of deep vein thrombosis or DVT, you should apply anti-embolic stockings। stockings आते हैं, anti-embolism stockings और DVT pump, और क्या लगा सकते हैं, DVT pump and alternate compressing device, compress करेगा, release करेगा, compress करेगा, release करेगा। So for the prevention of deep vein thrombosis और DVT, administer the anti-seizure medication, ये नहीं लिखना है, ये तो ठीक है हमने पढ़ लिया। कौन सी यूज करेंगे, फेनिटोइन बता दिया ऑलरेडी, सो ये पॉइंट आपने पढ़ लिया, सीजर को ट्रीट करने के लिए लिखना नहीं अभी। नेक्स्ट इज एनाल्जेसिक, अभी बता दिया मैंने ऑलरेडी, लिखना नहीं है अभी, सिर्फ क्या लिखना है, स्टॉकिंग्स पहनना है। नेक्स्ट डिजीज इज पार्किंसन, मैंने ऑलरेडी, लिखना नहीं है अभी, सिर्फ क्या लिखना है, स्टॉकिंग्स पहनना है। नेक्स्ट डिजीज इज पार्किंसन फर्स्ट, उसके बाद पढ़ेंगे trigeminal neuralgia। So we'll discuss about the Parkinson disease in the next class।